Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, guys, in this particular session, we are going to continue with our discussion based on AFM Module B. Okay, so we already done with these many units. Okay, so Unit 20, 12, balance sheet equation, we have done with this. Preparation of final accounts भी हमने कर लिया है. आपका कंपनी अकाउंट 1 and 2 ऑल डन. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डन. ठीक है. So now only two units are remaining from your module B, and today we are going to discuss final account of a banking company, right? So again, very important one because we all are bankers and we are going for this banking, like we generally deal with the banking operations. So there is a high probability जहां से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. So first we'll have a look on the basic course contents of topics and all. Then we will practice around 40 questions based on this particular unit, and I'll make sure कि आने वाले एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं के अराउंड आपका आएगा. ठीक है. लाइक जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ साथ हम लोग आपका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस you will get to know कि how to tackle those particular questions. Okay, so final account of a banking company, which include definition and function of bank. So we are not going to cover that particular one. PPB में बहुत डिटेल में हमने ये किया है. A requirement of banking companies as an account and audit. This we have done in our module A itself. ठीक है. Feature of accounting system, principal book of accounts, preparation and presentation of financial statement of bank, very important. Accounting treatment of specific item, again. Preparation of profit and loss account, comments on profit and loss account, balance sheet, disclosure requirements, disclosure prescribed as per RBI Basel 3, bank listed on a stock exchange, implementation of Indian accounting standards. So this portion is quite important. ठीक है. तो आपको इसके ऊपर मतलब बेसिकली एक कोई भी बैंकिंग कंपनी है उसके जो फाइनल अकाउंट्स है मींस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड योर आपका बैलेंस शीट, तो उनके अराउंड आपका ये पूरा जो टॉपिक है ये आपका कहीं ना कहीं रहता है. ठीक है. So we will start practice with our very first question. Though we have discussed this particular question in our previous session also, previous to previous company account 2. अब वहां पे मैंने खाली आपको हिंट दिया था, अब इसको हम लोग डिटेल में डिकोड करेंगे. ठीक है. सो हाउ मेनी शेड्यूल आर डिफाइंड टू बी मेड for the balance sheet of the banking company. So I hope you guys remember that particular statement. So banking companies in India, so if it is about the banking company, so banking company in India, they have to prepare their final accounts as per section 29 of the Banking Regulation Act 1949, right? So 1949 बहुत बार हमने इसको डिस्कस भी किया है. ठीक है. So now as per this particular section, so this is basically governed through the RBI. ठीक है. तो RBI ने फॉर्मेट दिया हुआ है. ठीक है. So we have Form A as per this particular section. ठीक है. Schedule 3, section 29 of BR Act. ठीक है. So Form A, which is deal with the performa balance sheet. ठीक है. So balance sheet. So here we have 12 schedules. ठीक है. So 12 schedules are generally part of this particular one. ठीक है. तो जिसमें से आपका liabilities plus capital, जहां पे टोटल आपका 5 शेड्यूल्स हैं. ठीक है. एंड फॉर एसेट्स वी हैव 7 शेड्यूल्स. ठीक है. तो इस तरीके से आपका इसका बाइफर्केशन मिलेगा. देन फॉर्म बी, the another statement which banking companies need to prepare, that is form B, performa profit and loss account. ठीक है. So in case of profit and loss account, ठीक है, so profit and loss account of a banking company, we have 6 schedule. ठीक है. जिसमें से आपका इनकम, फॉर इनकम वी हैव 13 and 14. ठीक है. फॉर एक्सपेंडिचर वी हैव 15 and 16. Then we have profit and loss, we have 17, and the 18th one is note to accounts. ठीक है. तो अगला जो आपका होगा 18, note to accounts. अब देखो यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. they'll ask you, they'll give you questions कि like जैसे उन्होंने दिया कि आपका let's say minorities interest is part of which of the following which is part of which schedule of balance sheet. तो आपका आंसर क्या होगा? minorities interest is basically
पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी एंड इट इज आपका बेसिकली आपका जो इन 5 शेड्यूल में से, और ये किस में आता है 2A के अंदर, ठीक है। आपका जो शेड्यूल 2 है विच इज रिलेटेड टू आपका रिजर्व इन सरप्लस, तो उसके बाद आपका माइनॉरिटीज इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और या फिर आपका इट इज कैन बी लाइक बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर वन दे कैन आस्क यू सम कैलकुलेट income of that particular company, banking company, or expenditure of that particular company, or with reference of this profit and loss as well, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिनको हम लोग समझेंगे वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन, सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 12 शेड्यूल्स, ठीक है। सो दीज आर द शेड्यूल्स जिनके अराउंड हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट क्लास था वहां पे हर एक शेड्यूल को, मतलब ये जो हेड हैं आपके, इनको डिटेल में बताया भी है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो विद दिस वी विल कंटिन्यू। आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट ऑल द 12 शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट एज वेल एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो वी हैव थर्ड शेड्यूल फॉर्म ए, आपका फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2024-25 जो भी है, ठीक है। सो इट स्टार्ट विद कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले आपका कैपिटल, सो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स, ठीक है। शेड्यूल 1, तो यहाँ पे आपका कैपिटल का बाइफर्केशन कैसा है, रिजर्व एंड सरप्लस जो आपके पास्ट ईयर्स में हमने जो बनाया हुआ है, ठीक है। देन वी हैव माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट 2A, ठीक है। माइनॉरिटीज इंटरेस्ट इज समथिंग लाइक जैसे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं आपका, ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स भी जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनका आपका जो पोर्शन रहेगा। डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स शेड्यूल 3, बोरोविंग आपका बोरोविंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोविंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दो तरीके की बोरोविंग होती है, एक डोमेस्टिक एक इंटरनेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक बोरोविंग इज फर्दर कैटेगराइज अमंग 3 पार्ट, बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोविंग फ्रॉम अदर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। थर्ड वन इज डीएफआईज, ठीक है, जैसा नबार्ड, एग्जिम और इनसे आपका, ठीक है। Then we have other liabilities and provisions. So total of this particular one. Second part is assets. So we have cash and balances with RBI, Schedule 6. Balances with bank and money at call and short notice. If it is call notice, अगर आपके बैंक के द्वारा कॉल नोटिस इशू किया गया, सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिसीव मनी ओवरनाइट 24 आवर्स के अंदर। इफ इट इज शॉर्ट नोटिस, यू आर गोइंग टू रिसीव मनी विद इन 14 डेज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स आपका, इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग आपका गोल्ड सिल्वर एंड ऑल, ठीक है। एडवांसेस टू कस्टमर्स, लोन एंड ऑल, ठीक है। फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स, गुडविल, टेंजिबल्स एंड अदर्स, ठीक है। अदर एसेट्स आपका जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड ऑल, ठीक है। So then we have contingent liabilities, so provision and all, they generally comes under this one, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में किसी भी बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट को ओपन करोगे, so you'll found the same sequence, okay, and the sequence is bit important for your upcoming examination, so you need to know like which comes under which schedule, or which is part of your which will be part of assets or your liabilities or capital. So we are going to practice a number of questions based on that, सो जिससे आपको ये चीजें याद होंगी, ठीक है। बिफोर दैट वी विल जस्ट हैव अ क्विक लुक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। सो अगेन थर्ड शेड्यूल फॉर्म बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव इनकम, सो बैंक दे हैव टू मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, वन इज इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द लैंडिंग्स और ऑल, ठीक है, तो हमने लोन दिया उससे इनकम। Other income like commission, dividend and all, that generally comes under. So 13 and 14, ठीक है। Income, expenditure 15 and 16, so आपका interest expended on deposits or borrowings, operating expenses, your day-to-day expenses, provision and contingencies, ठीक है। Then we will decide the profit and loss, so which include net profit loss for the year, profit brought forward, share of earnings or losses in associates, consolidated net profit after adding this team, less minorities interest, consolidated profit for the year attributable to the agro, add brought forward consolidated profit or loss, this, so total आपका schedule 7, ठीक है। Then we have profit and loss appropriation accounts. It is a kind of which generally show the जो भी यहाँ पे आपका net profit loss हुआ है उसका division, ठीक है, among the shareholders or owners. So transfer to statutory reserve like CRR, SLR and all, ठीक है। Transfer to other reserve,
ट्रांसफर टू गवर्नमेंट प्रपोज डिविडेंड, आपका कैरिड बैलेंस कैरिड ओवर द बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस। अब जो 18 नंबर है दैट इज योर नोट टू अकाउंट्स। So we have like note to account is basically explanatory note on these particular thing, ठीक है। जैसे let's say there is some minorities interest, so उसके ऊपर जो आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, there is something related to contingency or investments and all, ठीक है। तो उनकी वैल्यूएशन इन अदर्स दैट इज जनरली पार्ट ऑफ योर नोट टू अकाउंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिले। सो देयर आर 12 शेड्यूल्स दैट आर डिफाइंड इन सेक्शन 29 which state that banks should make their balance sheet in form A. However, there are 18 schedule, 12 schedule form A balance sheet and 6 schedule form B आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे पहला रिजर्व एंड सरप्लस आर शोन अंडर विच हेड ऑफ बैलेंस शीट, तो क्या होगा आपका आंसर शेड्यूल 2, ठीक है। जैसे हमने समझा था ना, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट 2A, बोरोविंग्स आपका 3, आपका डिपॉजिट्स 4, तो ये जो सारी चीजें आपकी हैं, तो अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन, what is the time frame for submission of audited annual accounts of a banking company with RBI, ठीक है। तो हमने ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस के नाम से एक यूनिट पढ़ा था मॉड्यूल ए के अंदर, ठीक है। तो जहां पे मैंने आपको कुछ शेड्यूल बताए थे जिनको आपको सेक्शंस आपका जिनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो उसमें आपका एज पर मतलब लाइक जैसे हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 29, दीज ऑल सेक्शन बिलोंग्स टू BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। सेक्शन 29 आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, सिग्नेचरीज क्या होंगे, ठीक है। सो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, इन केस वी हैव 3 और लेस देन दैट ऑल द डायरेक्टर्स, ठीक है। बट अदरवाइज आपका 3 डायरेक्टर्स कम से कम, ठीक है। इसके हिसाब से प्रिपरेशन होगा। देन ऑडिट आपका, सो इट इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन, ठीक है। देन आपका सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 इट इज रिलेटेड टू ऑडिट, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑडिट होगा, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन B, आपका कौन सा ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, ठीक है। सो स्पेशल ऑडिट एंड द कॉस्ट इज जनरली बोर्न बाय द बैंक इटसेल्फ, ठीक है। देन हमारे पास था सेक्शन 31 एंड 32, सो दीज आर द रिलेटेड टू आपका रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग विद RBI, रिपोर्टिंग विद रजिस्ट्रार ऑफिस एज वेल एज इन न्यूज़पेपर। सो with RBI, so companies they have to report within 60 days, ठीक है। जैसे let's say financial year 2023-24, ठीक है। so it got ended on 31st March, ठीक है। 31st March को ये फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हुआ, तो यहां से लेके 90 डेज के अंदर, ठीक है। सो दैट मीन्स अप्रैल मई जून, बिफोर द एंड ऑफ जून यू हैव टू सबमिट these like 3 copies of balance sheet, 3 copies of profit and loss account along with auditor's report with RBI as well as registrar office, ठीक है। in case of newspaper publication, ठीक है, आपको उन्हीं रिपोर्ट को न्यूज़पेपर में भी जो फाइनेंशियल जार्गन से उनमें भी आपका लिस्ट करना होता है विद इन आपका 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ मीन्स आपका 180 डेज, तो प्लीज डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर। नेक्स्ट वन, which of the following statement is true regarding the provisioning norm for non-performing assets in banks, ठीक है। तो provisioning for NPA, right? So standard asset require a higher provisioning, no, गलत है आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट में क्या होता है, दैट रेंज इज कहां से कहां तक आपका 0.25 टू आपका 0.75, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट के अगेंस्ट में भी आपका प्रोविजनिंग होती है बट वो उसका रेंज बहुत कम होता है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट रिक्वायर 100% प्रोविजनिंग, नो। इन केस ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट इफ इट इज सिक्योर्ड, सो कितना होता है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर, सिक्योर्ड के लिए आपका 15%। फॉर अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट, अनसिक्योर्ड के लिए कितना होगा आपका, फॉर अनसिक्योर्ड इट इज +10, दैट मीन्स 25%, ठीक है। तो ये भी गलत है। Doubtful asset have provisioning requirement that increase with the duration, they remain doubtful category, बिल्कुल हाँ ये हो सकता है, ठीक है। Loss asset do not require provisioning, no. In case of loss asset provisioning, like पहले तो आपका these loss asset should be written off from the balance sheet. For any reason if we are keeping those particular loss asset, so we have to make a provision of 100%, ठीक है। Now why this option C is correct? इन केस ऑफ डाउटफुल एसेट वी हैव 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो डाउटफुल एसेट का जो प्रोविजनिंग है वी हैव 3 कैटेगरीज, डाउटफुल 1,
डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3, ठीक है। सो इफ इट इज सिक्योर्ड आपका, ठीक है, तो अगर वो सिक्योर्ड एसेट है, ठीक है, सिक्योर्ड डाउटफुल, अगर आपका अनसिक्योर्ड है सो आपका डाउटफुल में आते ही 100%, ठीक है। इफ इट इज अनसिक्योर्ड 100% फ्रॉम कैटेगरी 1 इटसेल्फ, बट इफ इट इज सिक्योर्ड इन केस ऑफ दिस आपका 25% कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 आपका 40% एंड कैटेगरी 3 आपका 100%, ठीक है। तो इसी तरीके से वो आपका लॉस में भी 100 ही रहेगा, ठीक है। तो लॉस एसेट का मतलब दैट एसेट शुड बी रिटन आउट फ्रॉम द बैलेंस शीट, बट फॉर एनी रीजन आप कोर्ट केसेस ज्यादा उनके लिए रख रहे हो तो आपको 100% का प्रोविजन बनाना होगा। 1 2 3 का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, मंथ वाइज, ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट अप टू 12 मंथ्स ऑफ रिमेनिंग एनपीए, 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स आपका यहाँ पे डाउटफुल एसेट के अंदर, 24 मंथ्स टू 48 मंथ आपका सेकंड, आपका मोर देन 48 मंथ्स आपका आपका कैटेगरी 3। तो इस तरीके से जो कैटेगराइजेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, यस। सो प्रोविजनिंग नॉर्म्स आर डिजाइन्ड टू कवर पोटेंशियल लॉसेस। प्रोविजनिंग क्या होता है ये समझते हैं ना हम लोग, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है उसको कहीं ना कहीं हम लोग मतलब जो एक्सपेक्टेड लॉसेस है उनको कवर अप करने के लिए, तो सिंपल भाषा में, ठीक है, कि जस्ट कल के डेट में हमारे बैंक के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए इसके लिए, ठीक है। सो आर डिजाइन टू कवर दिस। स्टैंडर्ड एसेट हैव लोवेस्ट प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट रिक्वायरिंग हायर प्रोविजनिंग, बट क्या होता है मैंने आपको बताया 15 एंड 25%, सिक्योर्ड पोर्शन 15%, अनसिक्योर्ड आपका 25%। डाउटफुल एसेट प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड दैट इंक्रीज विद द टाइम, जैसे डाउटफुल 1 2 3 25, मतलब अगर वो अनसिक्योर्ड है तो 100%, अगर आपका इनसिक्योर्ड नहीं है, सिक्योर्ड एसेट है, तो आपका डाउटफुल 1 25, 2 आपका 40 एंड 3 आपका 100%, ठीक है। एंड लॉस एसेट, इन केस ऑफ लॉस एसेट वी रिक्वायर 100% प्रोविजनिंग। अंडरस्टूड, चलो आगे बढ़ते हैं। In the context of bank financial statement, what is the primary purpose of rebate on bill discount? ठीक है, तो हमारे आपके ट्रांजेक्शन में होता है rebate on bill discount. Rebate on bill discount means let's say there is a bill, ठीक है, आपका जैसे ट्रेड्स आपका प्लेटफॉर्म है उस पर आपका दिया गया, ठीक है। सो लेट्स से द बिल अमाउंट इज आपका सपोज दैट 50 करोड़, दैट एक्सपोर्टर इज गोइंग टू रिसीव दैट पर्टिकुलर बिल आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने का इस पर डेट है, ठीक है। वो आपके पास आया, उसने बोला कि सर आप हमें 45 करोड़ अभी दे दो और ये 5 करोड़ आपका कमीशन होगा फॉर दिस, आप इसको क्या कर रहे हो, डिस्काउंट कर रहे हो, ठीक है। सो रिबेट आपका जो मिल रही है इस तरीके से। तो टू रिकॉर्ड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर ऑन नेम, to account for the interest received in advance on discounted bill, to provide for potential bad debts, to adjust for exchange rate fluctuation, no. So इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, to account for interest received in advance on the discounted bill आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो B will be correct answer, ठीक है। Represent the interest income that a bank has received in advance for bill it has discounted by bank, ठीक है। Since द इनकम अपरटेन टू फ्यूचर, क्योंकि आपको जो पैसा 50 करोड़ है वो आपका कब मिलेगा, आफ्टर 3 मंथ्स। राइट नाउ यू आर पेइंग 45 करोड़ टू द एक्सपोर्टर या जो भी आपका वेंडर था, ठीक है। इट कैरिड फॉरवर्ड एज लाइबिलिटी एंड रिकॉग्नाइज एज इनकम इन द एप्रोप्रिएट अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Under the Banking Regulation Act 1949, which of the following is mandatory disclosure in the financial statement of a banking company? So mandatory disclosure is about detail of all fixed assets owned by bank. No, it is not mandatory. Profit or loss from sale of investment. Yes, it is mandatory. List of all loan defaulters. Breakdown of employee salaries. No. So क्या है आपका जो डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिससे हमने कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट किया है तो उससे हमारा जो प्रॉफिट लॉस हुआ दैट यू हैव टू डिस्क्लोज इन योर नोट टू अकाउंट्स इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज BR Act 1949 mandate that bank disclose certain financial information to provide transparency. This include the profit or loss arising from the sale or purchase of investment, which is essential for stakeholder to assess the bank financial performance. Next one. How are contingent liabilities treated in the balance in the final accounts of a banking company? Contingent liabilities, ठीक है, तो मतलब जो दे मे अकर और मे नॉट, ठीक है, मतलब ये ऐसी लाइबिलिटी जैसे हमने प्रोविजनिंग किया, सो हो सकता है वो डिफॉल्ट हो जाए या हो सकता है वो पैसा दे दे, तो ऐसी टाइप के जो आपके लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। दे आर रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी ऑन दी बैलेंस शीट
they are disclosed as note to the financial statement. They are included in profit and loss account. They are not disclosed until unless they materialize. No, they included in profit and loss account. No, they are disclosed as note to the financial statement. So B will be correct answer for this one. Yes. So contingent liabilities are potential obligation that may arise depending on the आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट्स इन बैंकिंग दीज इंक्लूड गारंटी जैसे आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हमने इशू किया या उस पर लीगल डिस्प्यूट एंड ऑल ठीक है while not recorded in liabilities on the balance sheet they are disclosed in the note to financial statement to inform the shareholders about the potential risk. Next one, what is the significance of statutory reserve? Statutory reserve, like we have to, like just a minimum capital requirement is 500 crores. Yeah, others आपका ऐसे जो भी require, जैसे CRR we have to maintain in accordance with RBI, we have to maintain SLR in accordance with RBI, ठीक है, CRR we have to deposit with RBI. So ये in a bank financial statement it represent the minimum cash reserve a bank must hold. It reserve created to meet unforeseen liabilities. It is mandatory reserve to be maintained as per banking regulations. ठीक है, क्योंकि इनके लिए आपका प्रॉपर जैसे CRR SLR है उनके लिए it is a reserve for no. So C should be right answer. ठीक है, बिल्कुल आसान है. ठीक है, so statutory reserve is a mandatory reserve that bank are required to maintain as per banking. तो ये देखो इसने BR एक्ट यूज किया तो दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द SLR. ठीक है, अगर ये CRR यूज करता तो RBI एक्ट हो जाता. ठीक है, और specified percentage of bank profit is to be transfer reserve before the declaring dividends and all. ठीक है, and that अच्छा ओके not about the SLR. ठीक है, ओवरऑल रिजर्व के ऊपर है and this is the provision प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफर. जैसे कोई कंपनी आपका जितना भी उसने प्रॉफिट अर्न किया उसका 20%, इफ यू आस्क मी द परसेंटेज कि उसका 20% फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफर टू द रिजर्व. ठीक है, उसके बाद आप डिविडेंड एंड अदर्स इन सब चीजों के ऊपर आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन, अ बैंक बैलेंस शीट हाउ शुड इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यूड बी क्लासिफाइड. ठीक है, इंटरेस्ट accrued but not a due. So it is case of other asset. ठीक है, so other asset है इसमें. हाँ, under asset आपका other asset. So D will be correct answer for this one. ठीक है, so interest accrued but not due is classified under other asset because it represents the income that is recognized but yet not received. ठीक है, so recognized but yet not received. It ensure accurate representation of bank financial position. ठीक है, next one, as per RBI guidelines, how often should bank recognize इंटरेस्ट इनकम ऑन नॉन परफॉर्मिंग. ठीक है, तो जैसे कोई एसेट आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है. ठीक है, लेट्स से दैट एसेट इज प्रेजेंटली कैटेगराइज्ड एज डाउटफुल एसेट. ठीक है, तो यूजुअली हाउ वी डू अकाउंटिंग, आर अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्रूल बेसिस. ठीक है, एक्रूल बेसिस पे आपका अकाउंटिंग होता है, बट इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट वी हैव टू डू अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस. ठीक है, तो ये सब आपके एक्रूल बेसिस हैं कि क्वार्टरली मंथली जो EMI सेट है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा. इफ इट इज बिकम NPA सो यू हैव टू अकाउंट इट ऑन अ कैश बेसिस ओनली. ठीक है, कैश बेसिस का मतलब once you'll receive that particular one then only you'll account that particular thing. So that is the one. Otherwise क्या होता है, जैसे लोन दिया आपका इस महीने की 5 तारीख को EMI होगा, so we are expecting कि from this asset we are going to like every fifth we'll receive this particular money. उसके हिसाब से हम उसको अकाउंट कर लेते हैं साल भर के लिए accrual basis. बट कैश बेसिस इज वंस यू रिसीव दैट मनी. ठीक है, क्योंकि अब उसका एक्सपीरियंस थोड़ा खराब हो गया है. ठीक है, तो जब वो पे करेगा तभी हम उसको आपका अकाउंट करेंगे, अदरवाइज विल नॉट अकाउंट. ठीक है, दैट इज द वन. So for NPA, bank should recognize interest income only on a cash basis, meaning they should not occur interest unless actually received to avoid inflation earnings and all. Okay, next one, in the balance sheet of a bank, which of the following is classified under other liabilities and provision? तो इनमें से कौन सा जो अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन का पार्ट होगा, अब वो काम आएगा वो शीट. ठीक है, डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर नहीं, ये आपका डिपॉजिट आपका अलग से हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा था. ठीक है, बोरोविंग हमने पढ़ा था आपका बोरोविंग फ्रॉम RBI एंड अदर्स. ठीक है, तो ये भी हमारे लिए अलग से. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, स्टैट्यूटरी रिजर्व. ठीक है, सो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन should be right answer for this particular one. ठीक है, so other liabilities and provision. ठीक है, next one, net interest margin NIM. ठीक है, so indicate in the bank financial statement. So NIM आपका NII, so these are some tool. ठीक है, जो हम बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है,
So net interest margin, how you calculate net interest margin? So NIM is equal to NII, net interest income, divide by एवरेज एसेट, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो अब देखो NII कैसे कैलकुलेट करते हैं। NII इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो मतलब जो हमने लोन आपका दिए हैं जिनसे हमारा इनकम हो रहा है, आउटफ्लो इज लाइक जो डिपॉजिट हमने कस्टमर से ले रखे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट इनफ्लो, इंटरेस्ट आउटफ्लो, ठीक है। So profitability of the bank after tax, no. Efficiency in managing interest income and expenses, okay, this can be, ठीक है। Capital adequacy ratio comply asset quality assessment, no. So क्या होगा इसका correct answer? आपका option B will be right answer for this particular one, ठीक है। So NIM measure the difference between interest earned and interest expended related to earnings assets. तो मैंने आपको formula क्या बताया? How we calculate NIM? It is equal to NII divided by एवरेज एसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको समझा। जब आप BFM पढ़ेंगे CAIB के अंदर, वहां पे इनका बहुत यूज होगा। NII, NIM, आपका इकोनॉमिक इक्विटी रेशियोज एंड ऑल, तो ये सब हम लोग वहां पे आपका समझते हैं, ठीक है। एज पर बैंकिंग रेगुलेशन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट? तो डेफर्ड टैक्स एसेट कहां पे आएगा? आसान है ना, ठीक है। तो आप किस में आएगा? इट शोन अंडर पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्यों दिखाओगे? इट डिडक्टेड फ्रॉम नेटवर्थ, नहीं। इट रिकॉग्नाइज अंडर अदर एसेट, बिल्कुल। इट एडजस्टेड अगेंस्ट प्रॉफिट, नो। तो क्या होगा? आपका एसेट है तो आपका अदर एसेट में रखेंगे, ठीक है। उसको डेफर्ड टैक्स से भले पिछले साल का जो टैक्स अमाउंट था एज पर इनकम टैक्स, वो हमने ज्यादा पे कर दिया था, अब इस साल या आने वाले सालों में हम इसका यूज करेंगे। सो दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ शुड अ बैंक अकाउंट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो ये क्या होगा? आपका लाइबिलिटी में हो जाएगा, अदर लाइबिलिटी में हो जाएगा, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज अंडर करंट लाइबिलिटीज, नो। प्रेजेंटेड अंडर प्रोविजन, रिकॉग्नाइज अंडर अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, ठीक है। So adjusted against statutory reserve, no. C will be correct answer for this particular one. जैसे asset है वैसे आपका अगर liability है तो liability side में। Assets which has remained NPA for a period not exceeding 12 months, तो क्या बोलेंगे हम उनको? तो आप सोच रहे होंगे सर इतना आसान क्यों? पार्ट है आपके उसका, ठीक है, आप लोगों के करिकुलम के अंदर, ठीक है। सो व्हाट इट इज कॉल्ड? सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड आपका जैसे हमने समझा था ना, फर्स्ट वी हैव SMA अकाउंट, ठीक है। सो SMA 0 कहां से लेके कहां तक? आपका 1 to 30 डेज, ठीक है, ये डेज है आपका, ठीक है। दूसरी तरफ आपका SMA 1, ठीक है, आपका 31 to 60 डे, एंड 2 इज आपका 61st to आपका 90 डेज, ठीक है, 90 डेज। तो यहाँ पे तो दिस इज द क्लासिफिकेशन एज पर RBI, ठीक है। कई बार आप करते हो 1 2 3, नहीं 1 2 3 नहीं है। RBI का बाइफरकेशन ये है 0 1 2, ठीक है। ये पूछा जाता कई बार, ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको हेल्प करेंगी। सो अगर उसने like let's say there is an EMI which was due on 5th of January 2025, due date was 5th of January 2025, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो अभी हम उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि अभी आपका जनवरी, आपका फरवरी 1 मंथ, मार्च 2 मंथ, आपका अप्रैल, टिल 5th of April 2025 you will categorize under these particular one, ठीक है। इसके बाद आफ्टर 90 days only you will declare that particular asset as a non performing asset. So अब इसमें कैटेगरीज होंगी तीन। पहला सब स्टैंडर्ड एसेट टिल 12 मंथ्स, ठीक है। 12 मंथ्स आपका जब से वो एनपीए हुआ है वहां से लेके 12 मंथ्स, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट तो कुछ है नहीं। लॉ आपका डाउटफुल एसेट आपका मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है। 2 आपका 48 मंथ्स, ठीक है, इस तरीके से। एंड फाइनली आपका लॉस एसेट। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द प्रोविजनिंग ऑल्सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following investment by bank are required to meet statutory liquidity ratios? Okay, so which is generally part of SLR. तो SLR में क्या होता है? Cash, gold and approved securities or government securities, ठीक है। So CRR is basically cash with RBI, a portion of NDDL that a bank they must deposit with RBI in the form of cash, CRR. SLR is a portion of NDDL that a bank need to maintain with itself, ठीक है, उसको खुद के पास उसको मेंटेन करना है in the form of cash, gold and government securities. Government securities also known as approved securities, ठीक है। तो क्या होगा आपका? Government securities and approved securities. So D will be right answer for this particular one. Next one, when can banking company pay dividend on its share? अभी मैंने आपको बताया था ना कितना होना चाहिए आपका
कि जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसका 20% यू हैव टू केप्ट असाइड, ठीक है। तो आपका अब यहाँ पे वो परसेंटेज नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर कैपिटलाइजिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल, ठीक है। सो आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, आफ्टर मतलब दिस इज अ पॉइंट बट नॉट द क्लियर कट, आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट, आफ्टर राइटिंग ऑफ ऑल इट्स कैपिटलाइज एक्सपेंसेस, बिल्कुल ये सही होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है, मतलब ये और ये इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। आफ्टर कैपिटलाइज all the sorry after writing off all the capitalized expenses of that particular one, उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट आपको, देन उसके बाद आप डिविडेंड, ठीक है। So section 15 of Banking Regulation Act 1949 state that banking companies can pay dividend on shares only after writing off all capitalized expenses including preliminary expenses, underwriting commission on sale of shares, brokerage losses are written off completely with current year profit, ठीक है, then आप eligible होंगे। What is the time frame for submission for audited annual accounts with RBI? Okay, we have discussed this question, 90 days. अगला, every banking company incorporated in India shall before declaring dividend transfer a sum equal to dash percent of net profit of each years as per the profit and loss account statement to reserve fund, ठीक है। तो आप कितना होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया था ना, अब याद हो गया होगा सबको 20%, ठीक है। So 20%. So that means आपका option B will be correct answer for this particular one. So India is required to transfer equal of 20% of the net profit this, ठीक है, before declaring dividend. This regulatory measure ensure that banking companies maintain a certain level of financial stability by setting aside a portion of their profit as reserve. Why we are keeping this reserve? For our bad time. In good time you'll make, if you'll make reserve, it is definitely going to help you out in your good time, ठीक है। Which of the following statement is incorrect? So you have to find out the incorrect statement, ठीक है। So advances by bank to priority sector are mentioned under advances schedule 9. No, it is like we have separate priority sector. This is incorrect, ठीक है। Overdraft is a temporary cash credit but without security. This is true यहाँ तक, and not shown in advances under schedule 9. तो ये आपका आंसर क्या होगा, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इट इज शोन अंडर एडवांसेस, इट इज यहाँ पे लिखा है नॉट, इट इज शोन अंडर एडवांसेस, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो दोनों ही क्या है आपका, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। शेड्यूल 9 एडवांसेस, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन पेबल्स, डिमांड। तो अब देखो वो ओवरड्राफ्ट था तो ये इसका पार्ट है एडवांसेस का, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीजें, प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखो। Hence overdraft is shown in आपका advances in schedule 9, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन गलत था। Advances to priority sector are classified under priority sector and shown not to be included in advances, तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या थे हमारे, गलत थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct? So you have to find out correct statement out of the given four statement. First, the provisioning requirement for loss asset is 80%. पहला ही गलत है, ठीक है, 100% होना चाहिए। The income from performing asset is recognized on an accrual basis. True. While the interest income from NPA is recognized on cash basis. 100% true. अभी मैंने आपको समझाया था कुछ देर पहले। The bill purchase or discounted is treated as an NPA if the bill is overdue or unpaid for not 60 days. In every condition we have 90 days. Apart from the agriculture case, all of the above no. ठीक है, तो क्या होगा आंसर, करेक्ट, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द ओनली स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, और शॉर्ट नोटिस मींस क्या होता है, बताया था आपको शॉर्ट नोटिस, एसेट साइड में हमने पढ़ा था शेड्यूल 7, ठीक है, याद है। सो आपका बैंक बैलेंस शीट, एसेट साइड, शेड्यूल 7, शॉर्ट नोटिस, आपका मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अगर ये कॉल होता तो आपका ओवरनाइट होता, बट ये शॉर्ट नोटिस है तो 14 डेज, ठीक है। सो क्या होना चाहिए आपका आंसर, repayable up to 14 days, ठीक है। So short notice is a liquid asset shown by the bank in schedule 7 of balance sheet. It need to be repaid by the borrowers within 14 days after receiving that notice. याद हो रहा है, देखो इस तरीके से आपको इनको याद करना है, ठीक है, समझना है।
How much provision is required for standard asset in other categories? Standard asset other categories. ठीक है? So I guess we haven't discussed this particular one. ठीक है? So your standard asset other category 0.40. ठीक है? So it is 0.40. Yes, 0.40. ठीक है? मैंने आपको बताया ना एक range 0.25 to 0.75. जो standard asset है, ठीक है? Let's say your bank is having like 500 crore rupees of standard asset. Still they have to maintain some sort of that provision for those particular asset also. ठीक है? तो it differ from asset to asset. Like for in case of housing, like residential housing, it is 0.5, 0.75. ठीक है? In case of retail loans and all, I guess it is 0.25%. तो ऐसे अलग अलग है. एग्रीकल्चर, इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इट इज 0.25, इन केस ऑफ एमएसएमई इट इज 0.25. ऐसे अलग अलग एरियाज. ठीक है? So direct advances to agriculture entity 0.25, advances to real estate 1%, ठीक है? अदर आपका 0.40 इस तरीके से. ठीक है? I'll show you one chart जहां से आपको क्लैरिटी मिलेगा. What is the required percentage of provision for loss asset? तो loss asset के केस में कितना होता है? 100%. तो loss asset first it should be written off from your balance sheet. ठीक है? So but for any reason if we are keeping that particular loss asset, कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से आपने उसको अभी अपने बैलेंस शीट में रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको 100% का प्रोविजनिंग करना होगा. ठीक है? Which act give the format of balance sheet and profit and loss account in which bank account should be prepared? तो क्या होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 29. बहुत बार हमने इसको पढ़ लिया. ठीक है? Dash is an arrangement by which bank agree to lend money up to a fixed limit against pledge or hypothecation ऑफ सम सिक्योरिटीज. बताइए जी, आप लोग डेली बेसिस पे कस्टमर से डील करते हैं. सो इट इज लाइक हमारे पास दो ऑप्शन है. वन इज फॉर दिस वी हैव टू ऑप्शन. वन इज ओवरड्राफ्ट, अनदर वन इज कैश क्रेडिट. ठीक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योर आंसर विल बी कैश क्रेडिट. इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट इट इज टोटली और इट इज प्योरली बेस्ड ऑन दी customer credit worthiness. We do not ask for any kind of pledge or hypothecation. But in case of cash credit, it is based on the, it is backed by some documents. Pledge is loan against financial documents like FD and all, उनके against में हमने उसको limit दिया हुआ है. या hypothecation is loan against movable asset. Usually जैसे जो manufacturing companies होती हैं, they generally take आपका cash credit on the basis of their stock and inventory and all. ठीक है? तो ये आपका, तो कैश क्रेडिट विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ये आसान था. नेक्स्ट वन, हाउ मच प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड एसेट? ओके सॉरी, इट्स अ रिपीट क्वेश्चन, माय बैड. हाँ, ये आपका चार्ट में आपसे बोल रहा था, तो ये आपको हेल्प करेगा. जैसे अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड एसेट, तो आपका 0.25 1%, ये आपका रेंज. सब स्टैंडर्ड एसेट आपका अप टू 12 मंथ्स, सिक्योर्ड 15, आपका अनसिक्योर्ड 25, डाउटफुल एसेट आपका अनसिक्योर्ड 100%, डाउटफुल 1 आपका, ठीक है, 25%, डाउटफुल 2 आपका कहाँ पे 40%. मैंने आपको 48 मंथ्स, यहाँ पे इसको 48 मंथ हो जाएंगे. मैंने मंथ वाइज आपको बताया था, यहाँ पे ईयर वाइज लिखा है. ठीक है? मोर देन 3 इयर्स इट इज 100%. इन केस ऑफ लॉस एसेट इट इज अगेन 100%. बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए. ये आपको सीआईबी में भी हेल्प करने वाला है. ठीक है? बीएफएम सब्जेक्ट के अंदर ही, बट यहाँ पे भी अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है? अगला क्वेश्चन गाइस, डैश, ओके सॉरी अगेन इट्स अ रिपीट क्वेश्चन. चलो हाँ आगे बढ़ते हैं. सपोज अ बैंकिंग कंपनी हैज ऑब्टेन बोरोविंग फ्रॉम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD. इट विल बी शोन अंडर डैश हेडिंग ऑफ बोरोविंग इन इंडिया. तो मैंने आपको बताया कि बैंक दे हैव टू टाइप ऑफ बोरोविंग्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. डोमेस्टिक बोरोविंग्स आर फर्दर कैटेगराइज अमंग 3 पार्ट. जो डोमेस्टिक बैंकों के बोरोविंग्स होते हैं 3 पार्ट में. पहला बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, ठीक है, दूसरा आपका बोरोविंग फ्रॉम अदर बैंक्स, तीसरा आपका बोरोविंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन लाइक डीएफआईज, ठीक है, NABARD, EXIM एंड ऑल. ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? बोरोविंग फ्रॉम other institution and sources will be right answer for this one. ठीक है? So other institution and sources, तो ये 3 कैटेगरी. ठीक है? तो there are several schedule that need to be furnished with the balance sheet. Schedule 4 mention the borrowings which are divided 2 part. India, outside India. ठीक है? India, Reserve Bank of India, other bank, other institution and resources. ठीक है? Borrowing from outside India, if a bank has borrowed from NABARD, it will be shown under this particular one. ठीक है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं. एसेट विच हैज रिमेन एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ. तो सब स्टैंडर्ड एसेट है आपका, पढ़ लिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट बाय बैंक आर रिक्वायर्ड टू मीट स्टैच्यूरी? तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अप्रूव सिक्योरिटीज. ठीक है?
अगला, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट डेटर्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो आपने एनपीए पढ़ा है उसी का रिलेशन है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, हमारा जो एसेट था उसकी हमने जो लोन दिया था कितने का, 50,000 का, ठीक है। बैड डेट्स कितने का हो गया, माइनस, तो बैड डेट्स को माइनस कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 45,000, ठीक है। बैड डेट आपका 5,000 का है, तो वैल्यू कितनी है आपका 45,000 का, ठीक है। सो दिस इज द करंट वैल्यू। प्रोविजन, अब इसका ये जो 45,000 है इसका 8%, सो 8% ऑफ 45,000 इज हाउ मच, जो भी अमाउंट निकलेगा आपका, ठीक है। सपोज दैट जो भी अमाउंट आपका है, ठीक है, सो 45,000 इंटू 0.08 अगर आप करोगे तो आप वो, तो उसको अगर आप इसमें से माइनस कर लोगे, ठीक है। सो एसेट वैल्यू विल बी 45,000 का 8%, जो भी वैल्यू आता है, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो, इंटू 0.08 इट इज 3600, ठीक है। सो ये आपका कितना है 3600, ठीक है। सो आपका 45,000 माइनस 3600, सो इट इज इक्वल टू 4,000, 41,400। तो हम इसको अपने बुक में कितनी वैल्यू दिखाएंगे, 4,000, हाँ ये 41,400। सो आर बुक वैल्यू ऑफ दिस एसेट विल बी 4,400 एंड आपका 36,000 विल बी आर प्रोविजन। अब यहाँ पे एक खाली एक हाइपोथेटिकल केस लिया है, अगर वो यहीं पे लिख दे आपको, आपका जैसे दिस एसेट इज कैटेगराइज अंडर सब स्टैंडर्ड एसेट, सिक्योर्ड एसेट, तो आप 15% लगाओगे, अनसिक्योर्ड तो 25 लगाओगे, इस तरीके से। समझ में आ रहा है दोस्तों, हाँ है ना, जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताइए। अगला, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शेड्यूल 6 ऑफ बैलेंस शीट कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, ठीक है। क्या है, सिर्फ ऐड करना है, देखने में थोड़ा घबराहट होगी बट कुछ नहीं है, इसमें ऐड करना है, ठीक है। कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, कैश एंड बैलेंसेस, टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई। तो कैश कितना है हमारे पास 10,000, आपका बैलेंसेस विद आरबीआई हमारा 25,000, बैलेंसेस विद आरबीआई एंड अदर अकाउंट से 10, तो इन सबका टोटल कितना होता है, वन इज लाइक 35, 50,000, तो 50,000 विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। तो टोटल बैलेंसेस विद आरबीआई, बैलेंसेस इन करंट अकाउंट प्लस दिस, आपका टोटल कैश एंड बैलेंसेस विद आरबीआई, तो दिस प्लस आपका जो रिमेनिंग अमाउंट था 10,000 वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, what is the rate of taxation under GST regime for banking services such as fund transfer, loan processing and all? So it is 18%. Earlier or prior to this GST, it was 15%. After the implementation of GST, so हमने इसको आपका 18% पे कर दिया. So that means इससे आपके जो चार्जेस हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है. डायरेक्ट इंटरेस्ट रिसीव 1 लाख, डिस्काउंट 20,000, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 22,000, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, कमीशन 5,000। कैलकुलेट टोटल इनकम। अब याद है आपको इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग, बैंक बैलेंस शीट के अंदर इनकम मींस इनकम आपका दो तरीके से है, ठीक है। आपका शेड्यूल 13 इंटरेस्ट इनकम, शेड्यूल 14 आपका अदर इनकम, ठीक है। तो आपको सिर्फ इनको ऐड करें, इंटरेस्ट इनकम आपका 1,00,000, डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका ये, ठीक है। तो आपका 10 ये माइनस हो जाएगा, मतलब 18,000, 1,18,000, 1.18 लाख। आपका डिविडेंड एंड कमीशन, अदर इनकम इज, अदर इनकम कितना है हमारा 15,000, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1,33,000, ठीक है। सो 1,33,000, इतना सिंपल है, बस लॉजिकली कॉन्सेप्ट को प्यार से समझो, आंसर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो नेक्स्ट वन गाइस। Okay, this is it. So this is it this is all about your final account of a banking company. So we practiced more than 40 questions. I hope सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, डाउट होता है तो आप उनके स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करो, पर्सनली मैसेज कर दो, ग्रुप में नहीं करते हो, बट रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, आई विल मेक श्योर कि आप आने वाले एग्जामिनेशन में सिर्फ पास नहीं होंगे, ठीक है। यू विल स्कोर लाइक 65 प्लस सभी सब्जेक्ट के अंदर आपका, ठीक है। उस तरीके से बस थोड़ा सा टाइम दो, 100 डेज है हमारे पास यार, ठीक है। मार्च एंड तक मैं आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगा ऐसे ही, फिर आपका अप्रैल में हम लोग बाकी के 2 सब्जेक्ट और रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चलेंगे, बट अभी से थोड़ा सा आप लोगों को स्टार्ट करना होगा। सो दैट इज द मेजर पेन पॉइंट, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बताइए कैसा लगा आपको सेशन, and do share your feedback on the comment section, and if you like please do share with your friends also. Okay, so this is it from my side guys, thank you for joining this session, thank you for watching this session, bye bye, take care all, and all the very best for your preparation. Thank you.